Hi everybody, welcome to Learner's Oasis. Today I'll be discussing about the medicine administration. I'll be discussing it in two parts. It is the part one today. I'll be explaining the oral route of administration and everything related to it. I have posted my earlier classes in my YouTube channel. If you wish to go through it, you can subscribe my channel Learner's Oasis so that you will get notification of my further classes and also you can review the previous classes. So to begin with medicine administration, we will see some terms which is normally used in medicine administration. First one is medicine. Medicine is a substance used to promote health, to prevent illness, to diagnose, to alleviate or cure disease. Medicine is a substance. वो जो है हेल्थ प्रमोशन के लिए, डिसीज प्रिवेंशन के लिए या डायग्नोसिस के लिए या क्योर या एलिवेशन of a disease. These are the purpose. So that is medicine. Then a drug. Drug is a chemical substance that modifies body function when taken into the body, which may or may not have therapeutic effect. ड्रग जो है केमिकल सब्सटेंस है, बॉडी में वो बॉडी के अंदर जाने से उसको बॉडी का फंक्शन को वो ऑल्टर करता है, फंक्शन को मॉडिफाई कर लेते हैं, बट इट ऑलवेज इट मे नॉट बी थेराप्यूटिक. It may or may not be having therapeutic effect. Next is a medication. Medication is a drug administered for its therapeutic effect. Therapeutic effect के लिए जो drug use होता है उसको medication कहते हैं. Thus all medications are drugs, but not all drugs are medication. So इसी तरह देखा जाए तो सारे medication drugs होते हैं, लेकिन सारे drug medications नहीं होते. ड्रग्स में थेराप्यूटिक और नॉन थेराप्यूटिक इफेक्ट हो सकता है, लेकिन मेडिकेशन में हमेशा थेराप्यूटिक इफेक्ट रहते हैं. थेराप्यूटिक मीन्स ट्रीटमेंट रिलेटेड. नेक्स्ट इज फार्माकोलॉजी. फार्माकोलॉजी इज स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ड्रग है उसका क्या इफेक्ट है, दैट इज इस स्टडी को जो करते थे, स्टडी the branch which study this effect of drugs on the organism is called pharmacology. Now we will see the nomenclature. Nomenclature actually means naming, giving a name. So drugs have three different names. Drugs को तीन names होते हैं, नाम होता है. First name is chemical name. Second name is non-proprietary name. Third name is proprietary names. So chemical name, the chemical constituent, उसके अंदर क्या chemical है उसके हिसाब से chemical name दिया जाता है. The non-proprietary name has two, it is divided into two. The one is approved name and second one is official name. Now what is approved name? Approved name is otherwise called generic name. It is given when a drug is introduced. जब ड्रग बना के वो इंट्रोड्यूस करते हैं उसको अप्रूवल अभी मिला नहीं है, लेकिन जो उसको एक नाम देते हैं, जैसे कुछ बॉडीज है, जैसे यूएसए में है तो यूसान करके बॉडी है जो नेमिंग करते हैं ड्रग को, या यूके में तो BAN. So these approved bodies give a name to the drug which is not usually official. So that is approved name. Next name is official name. Approved जो approved name जो है उसको approval देता है. It is approved by the Pharmacopoeia Commission and entered in official books. Approve हो गया तो फिर उसको official book में entry दिया जाता है. So then it is called the official name. The next is proprietary name. Proprietary name is given by the company who manufacture it. कंपनी जो ड्रग बनाता है वो अपना नाम देता है.
वो उसको जो और उसको उसको कहते हैं proprietary. So we will go with the nomenclature little more details. We'll see the first name, that is the chemical name. Chemical name describes the constituents of the drug. It is the name given to the drug in accordance with the rules of chemical nomenclature established by International Union of Pure and Applied Chemistry. Chemical name वो उसमें क्या chemical constituent है उसके हिसाब से chemical name दिया जाता है. ये जो chemical name है that is given by an international union of pure and applied chemistry. The next is non-proprietary name. Non-proprietary name is divided into two: approved name or generic name and the official name. So first, the approved name or the generic name. It is the name for the active ingredient in the medicine that is decided by an expert committee or the drug bodies like United States Adopted Name Council, USAN, which I told you in last slide also. Then British approved name or BAN soon after its introduction. So ये जो नॉन प्रोप्राइटरी नेम है, जैसे एक ड्रग बनाया उसको इंट्रोड्यूस किया तुरंत उसको एक नेम दिया जाता है. That is done by, again it is done by the approved bodies. There are some bodies to give names. Expert committee का एक body होती है. So the for example United States Adopted Name Council, that is USAN, or British approved name, that is BAN, uh, just after its introduction. So this name is given by the bodies like this. Then next is the official name. So it is given after the approval of the drug and is often the same as the generic name. ये ड्रग अभी इंट्रोड्यूस किया गया उसको अप्रूव करने का एक प्रोसेस है. इट इज अप्रूव्ड, देन द नेम इज अगेन चेंज्ड. वो थोड़ा जो जेनरिक नेम है उसी से डिराइव किया वाला नेम होता है और इट शुड बी आइडेंटिफाइड विद द दिस जेनरिक नेम और द अप्रूव्ड नेम. सो उसका उसी से एक नेम बना देते हैं, जो अप्रूव्ड नेम से ही एक दूसरा नाम बना देते हैं जिसको ऑफिशियली एक्सेप्ट किया जाता है. इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नेम होता है. WHO भी इस नेम को एक्सेप्ट कर लेता है. दैट इज कॉल्ड द ऑफिशियल नेम ऑफ द ड्रग. So we'll continue with the nomenclature. So the last name is the trade name or brand name or proprietary name. All these are same. It is the registered name assigned by the manufacturer and is copyrighted. ये जो trade name है, this name is given by the manufacturer. The company who manufactures the drug gives their own name. That is called the trade name or the proprietary name. This name is copyrighted. No other company can give this name once the name is copyrighted. Then one drug may be manufactured by many companies, so may be known by many trade names. Same medicine जो है बहुत सारे companies बना रहे होंगे, so वो सारे companies अपने अपने names देते हैं, so बहुत सारे नाम हो सकता है जो proprietary name जो है. फॉर एग्जाम्पल है जो पैरासिटामोल है उसका पैनाडोल, कैलपोल, क्रोसिन, मेटासिन ऐसे कई नाम से आता है. वो अलग अलग कंपनीज बनाया है इसलिए उनको अलग अलग नाम मिला है. They are written with capital initial letter and are often further distinguished by subscript R in circle. उसको capital initial letter capital लिख के उसको सुपरस्क्रिप्ट कर देते हैं R से. एक सर्कल में R बना के उसको सुपरस्क्रिप्ट कर देते हैं. Then clinicians usually described drugs by their proprietary name. क्लिनिशियंस जो है ये जो ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं वो यूजुअली जो प्रोप्राइटरी नेम से प्रिस्क्रिप्शन देते हैं. We will see the nomenclature of paracetamol. The chemical name of paracetamol is N,4-hydroxyphenyl acetamide. Then the proprietary name, the approved name by the British approved name is paracetamol. Then United States approved name is acetaminophen. And its official name is acetaminophen itself. Then proprietary name
is Panadol, Calpol, Adol. There are so many names. Now we'll see the classification of drugs. There are so many classifications, a wide variety of classifications are there. We'll see some of them. Comprehensive systems, example, anatomical, therapeutic classification system, that is called ATC. Systematized nomenclature of medicine, SNO, MAD. These are the comprehensive systems of classification. Second one is chemical class, like thiazide diuretics, cardiac glycosides, etc. That is chemical class. Then mechanism of action. According to mechanism of action, there are ACE inhibitors, beta blockers. There are so many. I am just giving one or two examples. Then mode of action. Example, action के हिसाब से diuretic, bronchodilators. Then therapeutic class, therapeutic effect के हिसाब से analgesic drugs, antibiotics, etc. Then amalgamated classes. Example है non-steroid anti-inflammatory drugs, NSAID, or disease-modifying antidiuretic drug, DMARD. Then other systems of classification like biopharmaceutic classification system. Then legal classification, example, the UK Misuse of Drugs Act, UK, and Controlled Substance Act and Schedules of Controlled Substances in USA. These are legal classifications. These are some of the classifications of drugs. Now we will see the classification based on the route of administration. किस route से medicine दे रहे हैं उसके हिसाब से classify किया हुआ है. So oral route से medicine जो दे रहे हैं उसमें आता है tablets, capsules, syrup, suspension, emulsion, etc. Then topical, that is application on the skin. जो skin में apply करते हैं उसको topical कहते हैं. So ointments, creams, gels, paste, etc. are topical. Again, the classification based on route of administration. Ophthalmic, that is eye drugs, that is eye drops, ointment, eye ointments, gels, etc. Then inhalation drugs, they are aerosols, nebulizers, dry powder inhaler, metered dose inhaler, vaporizer, etc. Then comes the parenteral route, that is injections mainly, intravenous, intramuscular, intracardiac, intraosseous, intraperitoneal, intracerebral, intrathecal, intradermal, subcutaneous, etc. are parenteral route of administration. Then the otic route, that is ear, through the ear, that is their ear drops mainly. Then rectal route, suppositories, ointments, enemas, nutrient enemas, etc. Then vaginal route, vaginal pessary. Sublingual and buccal route, orally disintegrating tablets, ODT or lozenges, then chewing tablets, mouthwash, toothpaste, ointment, oral spray, etc. Again, in topical route, there are dermal, ointment, dermal means on the skin, ointment, liniment, paste, cream, lotion, lip balm, medicated, shampoo, dermal patch, etc. Then mucosal application, that is ear drops, eye drops, nasal spray, ointment, hydrogel, nanosphere suspension, mucoadhesive microdisc. These are microsphere tablets. Then percutaneous, that includes transdermal patch, etc. Classification according to physical forms, they are solid, semi-solid, liquid and gas forms of drugs. Solid forms में आता है tablets, capsules, implants, transdermal patches, powders for external or internal use. Then semi-solid includes suppositories, pessaries, unshaped gels, creams, ointments, etc. Then comes the liquid forms of drugs like solutions, syrups, spirits, elixirs, tinctures, etc., emulsions, suspensions, external solutions like lotions, liniments, collodiums, etc. Then gaseous forms of drugs, aerosols includes inhalation or volatile anesthetics, aerodispersions or anti-asthmatic sprays. All these are gaseous forms of drugs.
Now we will go to the storage of medications. Once the medicine is dispensed from pharmacy to nursing units, it is the responsibility of the nurses to keep it safe. The drugs are kept in a store in such a way that they are easily traceable when required. So एक बार मेडिसिन वार्ड में आ गया, उसको ऑलरेडी डिस्पेंस्ड हो गया, तो उसको संभाल के रखना नर्सेस का ही काम है. सो द ड्रग्स कहाँ रखेंगे? इट इज केप्ट इन ए स्टोर जहाँ पे आप आराम से उसको निकाल सकते हैं जब जरूरत पड़े. एंड अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजिकल एक्शन ड्रग्स रख सकते हैं. अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजिकल एक्शन के हिसाब से ड्रग्स अरेंज कर सकते हैं, या फिर अल्फाबेटिक ऑर्डर में ए बी सी इसी तरह. नेम ए ग्रुप में जो मेडिसिन आ रहा है सारे एक जगह रखो, बी ग्रुप में जो आ रहा है बी से स्टार्ट होने वाला मेडिसिन सारे एक जैसे, दैट इज अल्फाबेटिक ऑर्डर. देन द स्टोरेज एनवायरनमेंट प्रॉपर होना चाहिए जहाँ पे मेडिसिन रखा हुआ है, जैसे कि आड़ी के टेम्परेचर होना चाहिए, सफिशिएंट लाइटिंग होना चाहिए, क्लीन कंडीशंस होना चाहिए स्टोरेज रूम में, ह्यूमिडिटी कंट्रोल होना चाहिए. ह्यूमिडिटी से ज़्यादा है तो मेडिसिन खराब हो जाएगी. कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज होना चाहिए, जैसे कुछ मेडिसिन फ्रीजर में रखने वाला है, जैसे वैक्सीन वगैरह, या फ्रिज में रखने वाला है, सो उसको कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी होना चाहिए. देन एडिकेट शेल्विंग टू अकोमोडेट ऑल ड्रग्स. प्रॉपर शेल्फ्स होना चाहिए, इनफ शेल्फ्स होने चाहिए ताकि सारे मेडिसिन प्रॉपरली रखे, इधर उधर ढंग करके नहीं रखना होता है मेडिसिन को. देन एडिकेट मेडिसिन कैबिनेट्स, फ्रिजेस, मेडिसिन कार्ड्स शुड बी अवेलेबल. सो जो स्टोर करके रखने के लिए जो भी फैसिलिटी चाहिए वो पूरा होना चाहिए. मेडिसिन को अलग अलग कंपार्टमेंट में इजीली ट्रेसेबल वे में रखना होता है. This is the picture of a crash cart. Crash cart is emergency trolley, otherwise it is called emergency trolley. It contains all the emergency drugs which is kept in the duty room, usually in a hospital ward, or where it is easily available when an emergency occurs. Then medicines for external use should be kept separate. External use के लिए जो medicine है उसको अलग रखना है. Drugs for internal intake also इन सेपरेट कबर्ड, अलग अलग कबर्ड में रखना है. जो इंटरनल यूज के लिए जो मेडिसिन है वो अलग रखने हैं. देन डेंजरस और एडिक्टिव ड्रग्स इन सेपरेट लॉक करके, जो डेंजरस ड्रग्स और एडिक्टिव ड्रग्स है, पॉइजनस ड्रग्स है, उसको सेपरेट रखना है ताकि कोई उसको मिसयूज ना करे. देन इमरजेंसी ड्रग्स शुड बी केप्ट इन इमरजेंसी ट्रॉली और एक क्रैश कार्ट, वो अपने जगह पे रखना है. Now we will see the care of medicine cabinets and drugs. जब स्टोर रूम में कैबिनेट्स होगा मेडिसिन रखने के लिए, उसको कैसे संभाल कर रखना है इसके बारे में बताते हैं. ईच वार्ड और नर्सिंग यूनिट शुड बी प्रोवाइडेड विद मेडिसिन कैबिनेट. हर एक वार्ड में मेडिसिन कैबिनेट सेपरेट देना चाहिए. इट शुड बी लार्ज इनफ. वो बड़ा, इतना बड़ा होना चाहिए ताकि सारे ड्रग्स जो है उसमें आ जाए. देन ट्राई टू कीप इट इन ए सेपरेट रूम एडजेसेंट टू नर्सिंग स्टेशन. नर्सिंग स्टेशन के पास जो रूम है उसमें मेडिसिन कैबिनेट्स अरेंज करने हैं. Then hand washing facility should be provided in the room. Room में hand washing facility होना चाहिए. Separate compartments for different categories of drugs. Then drugs should be used for external use should be kept separate. The containers should be arranged alphabetically so that it's easy to find out. जल्दी फाइंड आउट करने लायक कंडीशन में रखना है मेडिसिन को, अल्फाबेटिकली या किसी ऑर्डर में रखना है ताकि आसानी से. We will continue with the care of medicine cabinets. Poisonous drugs should be kept in separate cupboard with separate lock and key, and a senior nurse should be responsible for it. जो poisonous drug है उसको separate cabinet में रखना है, उसको lock and key under lock and key रखने, and the responsibility should be taken by a senior nurse in the ward. Also, a register should be maintained to show the proper data, amount in stock, amount used, etc. सो प्रॉपर जो डाटा उसमें लिखा हुआ होना चाहिए, कितने स्टॉक में है, कितने मेडिसिन मिला था, कितने यूज किया, ये सब का डाटा होना चाहिए. देन ऑल पॉइजनस ड्रग शुड बी लेबल पॉइजन इन रेडिंग. रेडिंग से लिख के रखना उसको, जो कंटेनर के ऊपर पॉइजन ऐसे लिख के रखना ताकि सबको पता चले वो पॉइजनस ड्रग है, हर किसी को यूज नहीं कर सकता. देन नो ड्रग्स शुड बी स्टोर्ड विदाउट लेबल. कोई भी ड्रग बिना लेबल की नहीं रखना, उसको डिस्कार्ड करनी है. लेबल नहीं तो मेडिसिन को पता नहीं चला कौन सी ड्रग है, कड़क देख के कोई मेडिसिन नहीं दे सकता, सो इट शुड बी डिस्कार्डेड.
देन कीप द कंटेनर्स क्लोज्ड ऑलवेज, जो भी मेडिसिन का कंटेनर है उसको हमेशा बंद रखना है, खुला छोड़ना नहीं चाहिए. Drugs that are unusual in color, odor or consistency should be returned to the pharmacy. जो ड्रग्स का नॉर्मल कलर है उससे अलग कलर आ रहा है, उसका स्मेल आ रहा है या कंसिस्टेंसी में कोई फर्क नजर आ रहा है तो उसको यूज नहीं करना, उसको फार्मेसी में वापस कर दो. रिटर्न इट. Care of medicine again and check the expiry date of drug and do not use any drug after expiry date. Send it back to the pharmacy. ड्रग का एक्सपायरी डेट यूज देख के ही हमेशा देना है. अगर एक्सपायरी खत्म हो गया तो उसको फार्मेसी में रिटर्न करो, वो यूज नहीं करनी है. मेडिसिन शुड बी केप्ट इन अप्रोप्रिएट टेम्परेचर्स, वैक्सीन सिरा एक्सेट्रा इन रेफ्रिजरेटर. मेडिसिन अपने आप उसका एडिक्वेट टेम्परेचर में रखना है, वैक्सीन वगैरह फ्रिज में रखना है, जो फ्रीजर में रखने वाला मेडिसिन है उसको फ्रीजर में रखना है. देन इमरजेंसी ड्रग शुड बी केप्ट इन सेपरेट प्लेस वेयर इट इज रेडीली अवेलेबल. जहाँ मेडिसिन जल्दी मिल जा सके ऐसे जगह रखना है इमरजेंसी ड्रग. Indian only the required amount of drug and all the drugs should be checked and signed after receiving. जितने ड्रग का जरूरत है उतना ही मेडिसिन आपको इंडियन करवानी है फार्मेसी से, और वो एक बार मेडिसिन मिल गया तो उसको साइन करके रिसीव करके स्टोर करके रखनी है. देन कीप मेडिसिन इन ए नीट एंड ड्राई प्लेस अंडर लॉक एंड क्लीन. मेडिसिन हमेशा नीट एंड ड्राई प्लेस में रखना है, उसको लॉक करके रखना है, खुला छोड़ना नहीं है. Then oily medicine should be kept in separate tray or in a piece of waterproof paper to prevent soiling of the shelf. ऑयली मेडिसिन है उसको बोतल में आ रहा है तो वो मेडिसिन जो है एक पेपर बिछा के उसके ऊपर रखना ताकि वो जो गीला नहीं हो, जो आपका शेल्फ है, जो मेडिसिन कैबिनेट है. Now we'll see the principles of medicine administration. Principles include three checks and 10 rights of the medicine administration. Three checks होते हैं, check करना है medicine को. That is, first checking is done. Check the medicine when taking the medicine from the container. जब आप medicine लेने जा रहे हो container से जब medicine निकालते हैं उस टाइम में आपको चेक करना है ये कौन सी मेडिसिन है. देन check when removing the medicine from the container. आप एक बोतल में से टैबलेट निकाल रहे हैं, जब बोतल का जो अलमीरा से जब निकालते हैं उस टाइम में देखना है कौन सी मेडिसिन है. तो उसके बाद फिर जब मेडिसिन आप वो बोतल से बाहर अपने जो पेशेंट को देने के लिए मेडिसिन का जो बॉल में निकालते हैं उसको, उस टाइम में भी वो बोतल में देखना है कौन सी मेडिसिन, उसका नाम क्या है. देन check when replacing the container. जब कंटेनर आप अलमारी में वापस रख रहे हो उस टाइम में भी एक बार चेक करो ये कौन सी मेडिसिन है. इसी तरह 3 बार चेक करने से मेडिसिन गलत मेडिसिन देने का कोई चांस नहीं है. सो दिस इज कॉल्ड 3 चेक्स. देन मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ राइट्स है. पहले 5 राइट्स था, फिर 6 7 ऐसे बढ़ा बढ़ा के 10 राइट्स तक आ गए. सो वी विल सी विच आर द राइट्स ऑफ द मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन. these are mainly patient oriented. पेशेंट का राइट्स है. सो राइट पेशेंट को मेडिसिन देना है. आप गलत पेशेंट को मेडिसिन दे दिया, जो राधा के लिए जो मेडिसिन है वो सीता को देते हैं तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. सो राइट पेशेंट होना चाहिए. देन राइट ड्रग. आपको पैरासीटामोल देना है, उसके जगह आप जाके कोई दूसरा मेडिसिन दे दिया तो वो भी प्रॉब्लम हो जाएगा. तो राइट ड्रग, जो ड्रग लिखा गया वही ड्रग देना है. देन राइट डोज. पेशेंट को एक टैबलेट देने के लिए लिखा तो एक ही देना है, 2 या 1.5 टैबलेट नहीं देना होता. देन राइट रूट. पेशेंट को अगर ओरल टैबलेट लिखा तो ओरल देना है, इंजेक्शन लिखा तो इंजेक्शन देना है. इंजेक्शन लिखा हुआ आप इंजेक्शन का जगह उसका टैबलेट सेम ड्रग का टैबलेट देते तो नहीं चलेगा. दैट शुड बी गिवन थ्रू द राइट रूट. इंजेक्शन लिखा तो इंजेक्शन ही देना है. देन राइट टाइम. जो पेशेंट को सुबह क्या कहते हैं सुबह 6 बजे मेडिसिन देना है तो वो 8 बजे नहीं देना होता है. इट शुड बी गिवन एट द राइट टाइम, सुबह 6 बजे ही देना होता है. देन राइट रीजन क्या होता है, पेशेंट को मेडिसिन क्यों दे रहा है, किस वजह से दे रहा है, वो सही होना चाहिए. देन राइट डॉक्यूमेंटेशन. पेशेंट को मेडिसिन देने के बाद उसको रिकॉर्डिंग करता है, उसको कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से करनी है. देन राइट इन्फॉर्मेशन और क्लाइंट एजुकेशन. पेशेंट को प्रॉपर जानकारी देना है. पेशेंट कई बार पूछते हैं मेडिसिन किस लिए दे रहा है मुझे, तो ये नहीं कि आपको ये पूछने की कोई हक नहीं है, ऐसे नहीं बोलना. पेशेंट को ये बोलना है कि क्यों दे रहे हैं. पैरासिटामोल दे रहे हैं तो उसको बोलना है ये मेडिसिन से आपका फीवर उतर जाएगा और पेन भी कम हो जाएगा, ये बताना है पेशेंट को. देन
राइट इवाल्युएशन क्या होता है? पेशेंट को मेडिसिन देने के बाद उसका इफेक्ट क्या मिला? पेशेंट को अगर फीवर का मेडिसिन दे दी तो फीवर कम हुआ कि नहीं, ये आपको देखना है। मेडिसिन दे दी, आपका काम खत्म नहीं होता वहां पे। You have to check what is the condition of the patient after giving the medication. That is right evaluation. Then right to refuse. अगर कोई पेशेंट बोले मुझे मेडिसिन नहीं चाहिए तो आप जबरदस्ती उसको मेडिसिन नहीं दे सकता। पेशेंट को राइट होते हैं उसको मेडिसिन रिफ्यूज करने के। सो रिफ्यूज किया तो आपको उसको समझाने की कोशिश कर सकते हैं आप। अगर पेशेंट समझ गया ये विलिंग है तो देना, नहीं विलिंग नहीं तो जबरदस्ती नहीं देना उसको। आप रिपोर्ट करना, उसमें उसका नर्सेस रिकॉर्ड में लिख के रखना कि मैं पेशेंट रिफ्यूज किया मेडिसिन लेने के लिए, और उसका आपका सीनियर नर्स को या डॉक्टर को इन्फॉर्म करना पेशेंट मेडिसिन लेने के लिए रिफ्यूज कर रहा है। रिकॉर्डिंग भी करना है, वर्बली इन्फॉर्म भी करने हैं। सो दिस आर द राइट्स ऑफ मेडिसिन. Now we will see the effects of drugs on the body. There are different types of effects of a drug in human body. So therapeutic effect, first one. Therapeutic effects are like health promotion, that is promoting the health. Then diagnosis करने के लिए ड्रग्स दिया जाता है कई बार. Then to alleviate disease, alleviate means for example palliative care, temporary relief of symptoms. जो पेशेंट को क्योर नहीं हो सकता उसका सिम्टम्स तो को थोड़ा रिलीफ मिलने के लिए जो मेडिसिन देते हैं, that is one effect. Then to treat or cure disease, कुछ डिसीज को पूरी तरह क्योर कर सकते हैं, उसको क्योर करने के लिए डिसीज ड्रग दिया जाता है. देन लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट. लोकल इफेक्ट होता है जैसे आपने कोई ऑइंटमेंट लगा दी पेन के लिए, दैट इज गिविंग ए लोकल इफेक्ट. अगर आपने टैबलेट खा लिया तो दैट इज गिविंग ए सिस्टमिक इफेक्ट ऑन योर बॉडी. देन एडवर्स इफेक्ट्स अदर देन थेराप्यूटिक इफेक्ट. जो इफेक्ट आप एक्सपेक्ट करते हैं उसके अलावा कुछ इफेक्ट्स होती है, उसको एडवर्स इफेक्ट्स कहते हैं. देन साइड इफेक्ट्स, जो माइनर एडवर्स इफेक्ट है उसको साइड इफेक्ट्स कहते हैं. देन एलर्जिक रिएक्शंस. एलर्जिक रिएक्शन में आता है एनाफिलैक्सिस, दैट इज इट्स ए टाइप ऑफ शॉक. Then skin rashes, or it is otherwise called urticaria. Then pruritus, that is itching. Angioedema. Then rhinitis. Then lacrimal tearing. Then nausea and vomiting, diarrhea, breathing difficulty, etc. are some allergic reactions. The other effects of drugs on your body are tolerance, that is decreased response to drug. कुछ मेडिसिन जो है काफी दिन देने के बाद उसका टॉलरेंस डेवलप कर लेते हैं. सो वो डोज जितने नॉर्मल डोज है उसमें इफेक्ट कम हो जाती है तो उसको ज्यादा डोज देना पड़ता है, उसको कहते हैं टॉलरेंस, ड्रग टॉलरेंस. देन टॉक्सिसिटी. ड्रग्स की वजह से टॉक्सिक इफेक्ट्स आ जाते हैं बॉडी में, टॉक्सिसिटी. देन ड्रग interaction सिनर्जिज्म, दैट इज कंबाइंड इफेक्ट विद अदर ड्रग्स. आप एक ड्रग ले रहे हो उसके साथ दूसरे ड्रग लेने से वो दोनों का इफेक्ट मिलके कई बार इफेक्ट ज्यादा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इंटरेक्शन सिनर्जिज्म. देन एंटागोनिज्म, डिक्रीज ड्रग इफेक्टिवनेस. कुछ मेडिसिन को जितना इफेक्ट मिलना चाहिए उससे कम मिलता है, उसको एंटागोनिज्म कहते हैं. देन ड्रग इनकॉम्पैटिबिलिटी, जो ड्रग है आपके बॉडी के लिए कॉम्पैटिबल नहीं है, दैट इज ड्रग इनकॉम्पैटिबिलिटी. देन इफेक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी सिस्टम, लाइक अलग अलग बॉडी सिस्टम में अलग अलग जो सिम्टम्स आ जाती है या इफेक्ट्स होती है. दे आर लाइक यूनर सिस्टम्स, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ब्लड डिस्क्रेसियास, देन नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम. ये हर एक सिस्टम में अलग अलग इफेक्ट होती हैं, that is body system. Then hypersensitive reactions, like some drugs are sensitive to sensitive to the therapeutic. Some drugs therapeutic effects are sensitive to your body or the secondary effects you are getting, that is called hypersensitive reaction. Your body sensitiveness towards the effects of the drug, that is hypersensitivity reactions. Then comes the legal and ethical aspects. As per law, nurses are responsible for their own actions regardless of a written order. जो आप मेडिसिन दे रहे हैं उसका जो भी प्रॉब्लम्स होता है, जो भी कॉम्प्लिकेशंस है, जो आपका एक्शन की वजह से कोई इफेक्ट पेशेंट को मिल रहा है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका ही है. रिटर्न ऑर्डर है तो भी आपको उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप
निकल नहीं पाएगा. You are responsible for your actions. Then nurse should know the laws about the use of narcotics. Narcotic drugs should be kept under safe custody and account should be maintained for the administration of this. जो narcotic drug है वो addictive drugs होती है. So ऐसे drugs जो है safe custody में रखना, हर किसी को नहीं मिलना चाहिए वो drug. So उसका जो अकाउंट रखना है, जितने मेडिसिन है, कितने यूज किया, कितने इंडियन के, ये सारे उसके अकाउंट्स प्रॉपर तरीके से रखना चाहिए. Then following information should be recorded when narcotics are administered. Narcotic drugs जब administer करता है, क्या क्या recording करना चाहिए? That is name of the patient, name of the drug, dosage, date and time of administration, signature of the person who prepared and administered it, and the name of the physician who ordered. ये सारे information जो है recorded होना चाहिए जब narcotic drugs देते हैं. Narcotics are controlled drugs due to the effect of addiction and only the hospitals or person with license to keep it should possess these drugs. Narcotic drugs are addictive drugs. इसको 3-4 बार लेने से उसका addiction हो सकता है. ऐसे drugs देने के लिए आपके साथ स्पेशल परमिट होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए. ऐसे लोग ही ये मेडिसिन दे सकते हैं. जैसे हॉस्पिटल में उन्होंने लाइसेंस ले रखी है तो वो मेडिसिन दे सकता है. अदरवाइज हर कोई मेडिसिन नहीं दे सकता. We'll continue with the legal and ethical aspects of medicine administration. Prevention medication arrests by observing the rights of medicine administration. सारे rights जो है पहले पर 10 rights बताए वो सारे follow करना है. medication arrests नहीं होना चाहिए. Charting the administration of drug or its omission is responsibility of a person who gives the medication. Observations also should be recorded with it. चैटिंग करना या रिकॉर्डिंग करना मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद वो जिसने दिया उसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. किसी और को नहीं बोलना होता है कि ये मैंने मेडिसिन दे दी आप रिकॉर्ड करो, ऐसे नहीं होना. और जो मेडिसिन देने के बाद जो भी आपको ऑब्जर्वेशन आपने किया पेशेंट के ऊपर, सो दैट आल्सो शुड बी recorded. The nurse should know what is acceptable and what is not acceptable practice in her own situation. कई हॉस्पिटल में अलग अलग प्रैक्टिस होगा, लेकिन आपको खुद पता होना चाहिए what is right और what is wrong. जो राइट है वो आपको वही काम करना होता है. उसने बताया इसलिए मैंने किया, ये है वो है, ऐसे बोलने से वो नहीं चलेगा. Then you should be able to realize what is right. If any drug is administered on experimental purpose, that should be informed. Benefits, side effects, toxic effects, etc. should be informed to the patient, and then consent should be taken for the same. अगर कोई मेडिसिन एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए दे रहा है तो उसका बेनिफिट्स क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, टॉक्सिक इफेक्ट्स क्या है, ये सब पेशेंट को इन्फॉर्म करना है और एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट भी लेना है पेशेंट से. मेजरमेंट ऑफ मेडिसिन, मेजरमेंट का डिफरेंट सिस्टम्स है. उसमें फर्स्ट वन इज मेट्रिक सिस्टम. मेट्रिक सिस्टम में मेट्रिक यूनिट्स आर यूज्ड इन दिस सिस्टम. एग्जांपल है मिलीग्राम, ग्राम, मिलीलीटर, लीटर वगैरह मेट्रिक सिस्टम में आता है. देन हाउस सिस्टम, हाउस सिस्टम में ये मिलीग्राम वगैरह यूज नहीं होता क्योंकि वो मेजर करने की तरीका कुछ साधन नहीं होगा. सो यू विल से 1 टीस्पून या 10 ड्रॉप्स दे दो या 3 ड्रॉप्स दे दो या 1 कप दे दो, ऐसे कहता है. दैट इज हाउस होल्ड सिस्टम. देन अपोथेकेरी सिस्टम, इट इज द ओल्डर सिस्टम. पुराने टाइम में ये सिस्टम यूज करता है. द बेसिक यूनिट ऑफ वेट इन दिस सिस्टम इज ग्रेन. ग्रेन GR कहता है. द बेसिक यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मिनिम. वो सब अभी यूज नहीं करते. वी आर मेनली यूजिंग द मेट्रिक सिस्टम. Now we will see how the oral medications are administered. First, we will see the nurse's responsibility while giving the oral medications. Check the diagnosis and age of the patient, purpose of medication, identification of the patient. So patient का identification, patient का नाम क्या है और उसका identification data बाकी क्या है आपको पता होना चाहिए. मेडिसिन किस लिए दे रहे हैं ये पता होना चाहिए. पेशेंट का डायग्नोसिस क्या है, पेशेंट का एज क्या है, ये सब आपको पहले चेक करना है मेडिसिन देने के पहले. Then check physician's order. physician order है कि नहीं आपको देखना है. Then check nurse's records for last dose given. लास्ट डोज कब दिया और कितने देर के बाद नेक्स्ट डोज देना ये आपको पता होना चाहिए. सो यू हैव टू चेक द last dose given. Then check for any contraindications. Check the character of the drug. Check for any oral esophageal lesions, consciousness of the patient and abilities of following instructions. So patient को कोई contraindication हुआ पहले medicine देने से
उसको किस तरह का मेडिसिन दे रहा है, देन ओरल या कोई लेशंस है, मुंह से पेशेंट मेडिसिन ले सकता है कि नहीं, पेशेंट कॉन्शियस है, आपका इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकता है, ये सारे डिटेल्स आपको चेक करना है मेडिसिन। सो प्रिपरेशन ऑफ द मेडिसिन ट्रॉली, मेडिसिन देने के लिए अगर ज्यादा पेशेंट्स को मेडिसिन ट्रॉली में लेके जाते हैं या फिर मेडिसिन एक पेशेंट को देना है तो एक ट्रे लेना है। वो ट्रे में सबसे पहले उसको जो मेडिसिन देना है वो मेडिसिन रखना है। देन बाउल ऑफ क्लीन वाटर, आउंस ग्लास, टी स्पून और ड्रॉपर, ये सारे सब नहीं रखना, उसमें से जो जरूरत है वही रखना। ऑन्स ग्लास से मेडिसिन मेजर करके देना तो ऑन्स ग्लास रखना, ड्रॉपर से देना ड्रॉप्स देना है तो ड्रॉपर रखना। सो वट एवर इज नीडेड दैट शुड बी केप्ट। देन ड्रिंकिंग वाटर ने फीडिंग कप, एक छोटा सा फीडिंग कप में थोड़ा ड्रिंकिंग वाटर रखना। मोटर एंड पेस्टिल अगर जरूरत है तो मेडिसिन पाउडर करके देना है या क्रश करके देना है तो मोटर एंड पेस्टिल रखना है, अदरवाइज उसको उसकी जरूरत नहीं है। देन डस्टर और टवल, एक छोटा सा टवल रखना ट्रे में, किडनी ट्रे एंड पेपर बैग वेस्ट रिसीव करने के लिए। Now we'll see the preparation of the patient and the environment. तो दो एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, पेशेंट के पास जाके उसको क्या करने के लिए आया हुआ, क्या मेडिसिन देने के लिए आया है, ये बता देना। देन प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, पेशेंट को जो पोजीशन में कंफर्टेबल लग रहा है, अगर बैठ के खाना चाहते तो बैठा दो। सो अगर पेशेंट बैठने लायक नहीं है, लेट के लेने वाला पेशेंट है तो लेट के ही देना, उसको लेटा के देना। सो जो पेशेंट जिस पोजीशन में कंफर्टेबल है उस पोजीशन में देना। देन गिव माउथ वॉश इफ नीडेड, अगर पेशेंट बेडरिडन पेशेंट है, उसका वो बोल है मुझे कुल्ला करना है, माउथ वॉश करके लेना है, तो उसको माउथ वॉश देना पड़े, उसके बाद मेडिसिन देना, अदरवाइज वो वोमिट भी कर सकता है। इफ मेडिकेशन इज इल टेस्टिंग प्रिपेयर ए ड्रिंक, अगर उसका बहुत कड़वी मेडिसिन है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, पेशेंट को अच्छा नहीं लगता, तो एक ड्रिंक बना के रखना। वो मेडिसिन लेने के बाद वो ड्रिंक एक गिलास ड्रिंक पी लिया तो वो टेस्ट बदल जाएगा मुंह से। देन प्रोटेक्ट द बेड क्लोथ्स एंड गारमेंट्स ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का बेड क्लोथ्स और गारमेंट वगैरह में पानी वगैरह नहीं आना चाहिए, मेडिसिन नहीं गिरना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना है। देन प्रोसीजर ऑफ गिविंग द मेडिकेशन, सबसे पहले हैंड वॉशिंग करना है, वॉश योर हैंड्स। रीड द फिजिशियंस ऑर्डर, फिजिशियन ऑर्डर एक मेडिसिन कार्ड आपने रखा हुआ, उसमें फिजिशियंस ऑर्डर पढ़ना है, देखना है। आफ्टर रीडिंग द मेडिसिन कार्ड, टेक द मेडिसिन फ्रॉम द शेल्फ, मेजर इट एंड डू नॉट टच विद हैंड्स। मेडिसिन ऑर्डर करने के बाद जो है मेडिसिन कबर्ड से निकालना है और उसको मेजर करके मेडिसिन जो जिस कंटेनर से देना है उसमें मेडिसिन रखना है। सो आपका हाथ से टच नहीं करना चाहिए मेडिसिन को। देन pour liquids from the opposite side of the label, अगर लिक्विड मेडिसिन है, सिरप वगैरह है, तो उसमें लेबल जहाँ पे उस साइड से मेडिसिन पोर नहीं करना, क्योंकि उस वहां से वो लेबल खराब होने के चांस है, तो अपोजिट साइड से मेडिसिन पोर करना। देन वाइप द माउथ ऑफ द बोतल एंड क्लोज द बोतल टाइटली, रिटर्न द कंटेनर्स बैक टू शेल्फ, अगर मेडिसिन लेने के बाद अगर लिक्विड मेडिसिन है तो वो ऊज आउट होकर नीचे नहीं आए, इसलिए उसको मॉडल कंटेनर थोड़ा क्लीन करके बंद करके डायरेक्टली बंद करके शेल्फ में वापस रखने हैं। So we'll continue with the procedure of giving medications. Recheck the medicine bottle with the medicine card. मेडिसिन कार्ड के साथ मेडिसिन जो मेडिसिन जब कवर्ड से निकालते हैं उस टाइम में आपको एक बार चेक करना है। उसके बाद मेडिसिन जो कंटेनर में बोतल से कंटेनर में डालता है उस टाइम में आपको चेक करना है। उसके बाद जब मेडिसिन बोतल वापस कवर्ड में रखते हैं उस टाइम में भी चेक करना। दैट इज 3 checks. Then place the medicine with medication card in the tray. मेडिकेशन कार्ड के साथ मेडिसिन ट्रे में रखना है। प्रिपेयर द मेडिकेशन इफ डिफरेंट कंटेनर्स एंड डू नॉट मिक्स द मेडिसिन। अगर दो तीन मेडिसिन है तो उसको अलग अलग कंटेनर में लेना है, उसको मिक्सअप नहीं करना, जैसे स्पेशली द फ्लू लिक्विड्स वगैरह उसको मिक्स नहीं करना, अलग अलग कंटेनर में रखना है। देन लॉक द मेडिसिन कैबिनेट एंड टेक द मेडिसिन टू द बेड साइड, मेडिसिन कैबिनेट लॉक करके मेडिसिन लेके आपको बेड साइड में जाना है। उसके बाद आइडेंटिफाई द पेशेंट विद द मेडिसिन कार्ड, मेथड्स अवेलेबल आर, पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है मेडिसिन देने के पहले, राइट पेशेंट। तो पेशेंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आपको ये तरीका है, अलग अलग तरीका है भाई। कॉलिंग नहीं है, पेशेंट का नाम बुलाओ और पेशेंट अगर जवाब दे रहे तो उसको दोबारा पूछो आपका नाम, अगर गीता पेशेंट का नाम था आप पूछो आपका नाम गीता है, ये पूछो।
checking the name written on the bed or डोर ऑफ द प्राइवेट रूम में पेशेंट है तो डोर में पेशेंट का नाम लिखा होगा, और बेड में जो वार्ड में पेशेंट है तो बेड साइड में पेशेंट का नाम लिखा हुआ होगा, तो वो पढ़ लेना। देन आस्क द पेशेंट टू रिपीट द नेम, पेशेंट का नाम खुद बोलने के लिए बोलो, उसको नाम उसको खुद बोलने के लिए बोलो, आपका नाम क्या है बताओ, ये पूछो उसको। देन आइडेंटिफाई पेशेंट्स नेम विद द स्टाफ मेंबर हु नोस द पेशेंट, पेशेंट जो दूसरे स्टाफ उसको जानता है तो उसको पूछे इसका नाम गीता ही है या क्या नाम है इसका, ये पूछ सकते हैं आप। ये इसी तरह आपको कंफर्म करना है पेशेंट्स जिसको आप मेडिसिन देने वाला है वो राइट पेशेंट है। We'll continue with the medicine administration. Administer the medicine. For that, give water to moisten the mouth. Give one medication at one time and make sure he has taken the medicine. सो पेशेंट को मेडिसिन मुंह में देने के पहले उसको थोड़ा पानी देना ताकि मॉइस्चर हो जाए उसका माउथ। एक मेडिसिन एक टाइम में देना, 4-5 मेडिसिन तो एक साथ मेडिसिन उसका मुंह में नहीं डालना, एक एक करके देना और उसको पानी देना, और मेक श्योर दैट द पेशेंट हैज टेकन द मेडिसिन। प्रोवाइड वाटर आफ्टर मेडिकेशंस आर एडमिनिस्ट्रेड, प्लेस द ग्लास ऑफ वाटर ऑन ग्लास इन अ बाउल ऑफ वाटर। पेशेंट मेडिसिन लेने के देने के साथ उसको कोई ड्रिंक बनाए तो वो भी दे देना, पानी दे देना आराम से उसको, सारे मेडिसिन जो है ले लिया ये कंफर्म करने के बाद। अगर आउंस ग्लास से मेडिसिन देता है, आउंस ग्लास से लिक्विड दिया तो उसको एक बाउल ऑफ वाटर में डाल देना। देन आफ्टर केयर, रिमूव द टवल एंड वाइप द फेस विद द पेशेंट, जो छोटा सा टवल आप लेके गया हो उसको लेके पेशेंट का फेस को वाइप करनी है। पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देना है, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन टू द पेशेंट, टेक ऑल आर्टिकल्स टू यूटिलिटी रूम एंड रिप्लेस द आर्टिकल, सारे आर्टिकल्स यूटिलिटी रूम में लेके जाना है, दैट इज नेक्स्ट स्टेशन, and replace the articles after washing and drying it. Then wash your hands. Then record the medication given if omitted also with reason. जो मेडिसिन दिया आपने उसको रिकॉर्ड करनी है, अगर पेशेंट ने मना किया कोई मेडिसिन तो वो भी लिखना है विथ रीजन क्यों मना किया। देन रिकॉर्ड एनी रिएक्शंस ऑब्जर्व्ड, कोई मेडिसिन देने के बाद कोई रिएक्शन हुआ पेशेंट को तो वो ऑब्जर्व करके वो भी लिखना है। देन रिटर्न द मेडिकेशन कार्ड्स टू फाइल सेक्शन, जो आपने मेडिकेशन कार्ड लिखे उसको फाइल सेक्शन में वापस रखना है। So to conclude that topic, we have discussed about the definitions, nomenclature, storage of medications, classification of drugs, then principles of medicine administration, legal and ethical aspects of medicine administration, measurement systems, then oral drug administration, the nurse's responsibility in giving oral medication, preparation of medicine, patient and the environment, procedure of giving medicine to the patients, and aftercare of patient and the articles. We have discussed all those things. I hope all of you understood the topic. If you have any doubts, you can ask at any time. So thank you so much for listening.